Hello students, let us start up with the essay type questions from chapter number 5, Admission of Partner. Okay dear students, let us today do question number 14 of your textbook. Again, current account and capital account both are there in this particular question. Rutvi and Princey are partners. Okay, sharing PL 5:3. This is important to keep in mind because आगे पता चलेगा इसका impact क्या आ रहा है. Okay, some balances whatever are given to us. Let us look into the question very deeply. See, Mann is admitted. Okay, Mann will bring personal furniture of 75,000 as capital. Not only this much, out of creditors, 60,000 are payable to Mann, which is to be transferred to his capital account again. What this statement means that partner is bringing furniture worth rupees 75,000. Even he is settling with the creditors worth rupees 60,000. So this, I mean to say, here total capital of his will reflect 1,35,000. Not only this much, Mann will be given 1/5 share in future. So उसका हिस्सा कितना 1/5 हो जाता है. Okay, on top of it, if you try even some more things to understand, he will bring 45,000 as goodwill in cash. But see, firm's goodwill is given to you 3 lakhs. Here, what I am trying to tell you is that sacrifice की जरूरत ही नहीं है, because here old is equal to new, which is equal to sacrifice. No information about sacrifice is given. So sacrifice 5:3 हो जाएगा. पार्टनर का शेयर 1/5 दिया है और वो 45,000 गुडविल कैश में लेके आ रहा है. लेकिन गुडविल फर्म की कितनी दी हुई है, ये पॉइंट 1 हमारा जो हर बार हम कैलकुलेशंस में करते हैं. गुडविल हियर फर्म की टोटल गुडविल दी हुई है 3 lakhs. 3 lakhs में पार्टनर का हिस्सा 1/5, दैट इज पार्टनर की गुडविल का विल कम टोटल वैसे 60,000. बट फ्रॉम दिस 60 हियर he is bringing from 60,000 45,000 cash. Okay, 45,000 he is bringing in cash. Now that means he is not able to bring 5,000 in cash, 15,000 in cash, and this 15,000 will be cleared with the help of his capital account. But which capital? That is important to know in this question. All this adjustment will be done through current capital account. So dear students, हम लोग यही पॉइंट के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी पॉइंट को हमको समझना है कि करंट अकाउंट में कैसे एडजस्ट होगा और न्यू पार्टनर दैट इज मनन, उसका भी कैसे करंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. Up till now, he doesn't have any balance in the current account, but the amount which he is not able to bring, he has not brought of goodwill in cash, this will be shown as his current capital only and represented. Let me show you the entry. If I go for 45,000 जो कैश में लेके आया है, तो उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल amount तो we know, this is 45,000, this is 45,000. Premium for goodwill account debit to कौन हमारे दोनों पार्टनर्स हैं, रुत्वी एंड प्रिंसी. तो रुत्वीज करंट कैपिटल अकाउंट टू प्रिंसीज करंट कैपिटल अकाउंट. ये 45,000. वैसे ओल्ड पार्टनर्स कौन सा रेशियो होता है, सेक्रीफाइस. यहाँ कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड बिकम्स सेक्रीफाइस, दैट इज 5:3 में ये इनको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा. 28,125 and 16,875. Not only this much, which he has not brought cash, this न्यू पार्टनर मनन, उसके लिए एंट्री पास होगी मनन्स
करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रिएट होगा 15,000 से करंट कैपिटल टू रुतवीज करंट कैपिटल टू प्रिंसीज करंट कैपिटल. अगेन सेक्रीफाइस 5:3 में 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 9,375 and 5,625. I hope this is clear, very clear to all of you. This is again an point. Even capital will be the point to represent furniture और creditors को adjust करना पड़ेगा मनन की कैपिटल को लेके आने के लिए. Okay, so one by one इसको करेंगे. I hope this is very clear to everyone. Let us start with the sum. And sum में अगर देखना चाहें तो बनाएंगे क्या क्या, वही रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल. पर कौन सा कैपिटल? अगेन लेट मी टेल यू, कौन सा कैपिटल? करंट, क्योंकि जो फिक्स है वो सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा. सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का खोला है, न्यू का नहीं खोला है. रुतवी और प्रिंसी क्योंकि न्यू वाले का एक ही ट्रांजेक्शन है. देन बैंक अकाउंट है, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/17 आफ्टर एडमिशन ऑफ मनन. ये इसकी हेडिंग के लिए. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ब्रिंग डाउन बैलेंसेस. उसमें वही बात वापस से बोलूंगी कि बैलेंसेस में जो कैपिटल है पार्टनर का 1,20,000 और 90, ये पूरा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा. ऊपर टॉप पे फिक्स कैपिटल. कैपिटल अकाउंट में इफ आई ट्राई टू शो यू रुतवी एंड प्रिंसी, हियर इफ आई राइट फुल रुतवी एंड प्रिंसी, ओल्ड पार्टनर्स जो है ना उनका 1,20,000 और जो नेक्स्ट अमाउंट यहाँ पे 90,000 ये डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, नाउ अनदर करंट अकाउंट का हम ट्रांसफर करें 1,50,000 और 1,50,000 1,75,000 ट्रांसफर कर लें. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर रुतवी 1 lakh, here it is given to you 50,000 and for Princey 1,95,000 respectively. बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड. ओके, इवन बैंक का बैलेंस चेक कर लें बैलेंस शीट में. पहला आइटम बैंक 60,000, ब्रिंग डाउन टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 60,000. ओके, दिस इज स्टेप 1 कंप्लीट. नाउ एडजस्टमेंट्स पे जाएं. फर्स्ट एडजस्टमेंट पीसफुली करेंगे. मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर. मनन अपना फर्नीचर 75,000 और दूसरा 60,000 जो क्रेडिटर्स को पे कर रहा है वो भी हमको कैपिटल में एडजस्ट करना है. सो इन शॉर्ट उसकी कैपिटल कितनी काउंट करेंगे हम? 135. सी हाउ वी कैन राइट. मनन फर्नीचर प्लस क्रेडिटर करके 1,35,000. ओके, इसे आप इसका ग्रैंड टोटल बाहर ले भी सकते हैं. 3,45,000 बाद में भी कर सकते हैं. इतना नहीं रुकना है क्योंकि ये फर्नीचर लाया. पहले देखेंगे कोई और फर्नीचर है. बैलेंस शीट में कोई और फर्नीचर नहीं है तो सीधा ये फर्नीचर 75,000 हमारी न्यू बैलेंस शीट में जाएगा. इतना ही नहीं, पहले देखो क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं उतना लेंगे हम क्रेडिटर्स को. क्रेडिटर्स आर गिवन टू अस 20, ओपनिंग बैलेंस 120, उसमें से ये पार्टनर 60 पे कर देगा. सो मेंशन हियर. ओके, क्रेडिटर्स 1,20,000 माइनस पेड बाय मनन. मनन ने पे कर दिए 60. नेट अमाउंट है हमारा, वो भी हमको अंदर रखना है क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है इसलिए मैं अंदर ही रख रही हूं. दिस इज पेड बाय मनन. मनन ने पे कर दिया है. बाकी के 60,000 वैसे बाहर लेने चाहिए पर क्योंकि और एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने अंदर ही रखे हैं. नाउ let us go to next adjustment. Okay, next adjustment गुडविल वाली है. 45,000 कैश है, बाकी जो नहीं ला रहा है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है. डिस्कस कर लिया है. लेट अस सी क्वेश्चन एंड गो फॉर इट. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 कैश तो बैंक में आ जाएगा. दर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000. ओके, नेक्स्ट एंट्री premium for goodwill account debit to Ritwik to Princey. Let us adjust here. Buy premium for goodwill. Ritwik को 28,125 और 16,875.
दिस इज 5:3 रेशियो में. नाउ नेक्स्ट, ये दिस वॉज 45,000 कैश एडजस्टेड. नेक्स्ट एंट्री भी हमने डिस्कस की थी. मनन के करंट कैपिटल क्रिएट करेंगे जिसके लिए पूरा सम है. तो मनन का करंट कैपिटल 15 क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों के करंट कैपिटल डेबिट होंगे. तो इन दोनों को डेबिट करें. पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे क्या आप हियर, मनन्स करंट कैपिटल अकाउंट. मनन्स करंट कैपिटल अकाउंट 93, sorry, here no, here by they are getting, these both are getting, पैसे मिलेंगे तो क्रेडिट by मनन्स करंट कैपिटल अकाउंट. पैसे मिल रहे हैं 93755625 और एट द सेम टाइम मनन का करंट कैपिटल बैलेंस शीट में आप क्रिएट करेंगे. यहाँ पे मनन्स करंट कैपिटल अकाउंट अभी नया एंटर हुआ है पार्टनर और अभी एक ट्रांजेक्शन की है 15,000. ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड लास्ट में क्योंकि डेबिट है वो. ओके, उसका अमाउंट डेबिट है. लेट अस सी नाउ अदर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स. उसमें भी क्रेडिट परचेज ऑफ 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but is included in already in closing stock. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में दिखाए हैं क्रेडिट परचेजेस लेकिन क्रेडिटर्स में आपने नहीं दिखाए हैं. ओके, और परचेज में भी हमने नहीं दिखाए हैं. तो पहली चीज परचेज में दिखाने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको शो करेंगे टू परचेज अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा 15,000. नॉट ओनली दिस मच, क्रेडिटर्स में आपने नहीं रिकॉर्ड किए हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में प्लस unrecorded purchases. Unrecorded purchases. Now you can take 75,000 outside. Important adjustment it was. जैसे ट्रेडिंग होता तो आप ट्रेडिंग में अनरिकॉर्डेड परचेज डेबिट करते. यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल का जैसा ही रोल रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट प्ले करेगा, रीवैल्यूएशन. तो उसी में हम परचेजेस को रिप्रेजेंट कर देंगे. आगे बढ़ेंगे. सो ऑल दिस आर डन. Now, market value of stock is 45, of 45,000 is 36,000. जो पूरा स्टॉक है उससे साथ गड़बड़ नहीं है बट एक ऐसा स्टॉक है 45,000 का, उसकी वैल्यू 36,000 है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. टोटल स्टॉक कितने का है, टोटल स्टॉक, इफ आई पुट हियर स्टॉक्स हेडिंग हियर, स्टॉक में टोटल स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 60,000. 60,000 में से एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू 45,000 है और उसकी वैल्यू अब भी 36,000 है. अगर आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करें ना तो यहाँ ना सीधा सीधा आपको क्या है, यहाँ स्टॉक में 9,000 का लॉस है. इसके कहने का मतलब बाकी के 15,000 को तो कुछ नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू 15 ही रहेगी. इन शॉर्ट 9,000 का लॉस है. अभी 9,000 का लॉस होगा तो पहले 60 दिखाए थे -9, अब स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 51,000. सो एडजस्टेड 9,000 का लॉस है. पहली चीज भूलना नहीं, रीवैल्यूएशन में डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 9,000 का लॉस डेबिट करेंगे. दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में 9,000 स्टॉक की वैल्यू कम दिखाएंगे, पहले 60 थी अभी 51,000. ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट. मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया ये. लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 28,000. अरे अब हम लोग अभी बहुत प्रैक्टिस की है. लेट अस सी टोटल कितना है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन 60 में से 28,000 की लायबिलिटी है. एक्सेस हमारा रिजर्व होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एक बार और प्रैक्टिकली देखना है, देख लेंगे हम. टोटल वर्कमैन कंपनसेशन 60 है यहाँ पे बैलेंस शीट में. उसमें से लायबिलिटी हमारी कितनी है 28,000. इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में. ओके, लायबिलिटी 28,000 की, उसको बैलेंस शीट में. इसके एक्सेस जितना है, कितना एक्सेस होगा 32,000. ये हो जाएगा अक्यूमुलेटेड पीएल और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को. ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. That will be 20,000
and 12,000 respectively. Okay, so let us करें इसको एडजस्टमेंट को सॉल्व. पहली चीज, जितना लाइबिलिटी है उतना लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे. 28,000 हमारी लाइबिलिटी है. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. जो जितना एक्सेस है वो प्रॉफिट है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखा दोगे बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन. यहाँ पे 20 हमने कैलकुलेशन कर ली. 20,000 एंड 12,000 ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. ओके, नेक्स्ट अगेन वर्डिंग्स ध्यान रखनी है. अक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड. लास्ट है एडजस्टमेंट, कोई बात नहीं है, नहीं रिकॉर्ड हुई 24,000. हमारी इनकम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय आउटस्टैंडिंग. उस पहले भी मैंने बताया इसलिए बता रही हूँ, याद रहे. अक्वर्ड मीन्स आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000 का प्रॉफिट. ओके, वन इफेक्ट दिस वन, और ये प्रॉफिट भी है. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट करंट एसेट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 प्रॉफिट इन बैलेंस शीट में एसेट. ओके, एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीट, बट लेट अस नाउ शटडाउन प्रोसेस करना है. ठीक है, पहले लाइबिलिटी साइड देखेंगे. वर्कमैन एक्सीडेंट यहाँ पे कंपनसेशन रिजर्व एंड फंड both are given to you here. This again you need to understand this fund, जो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, this is your liability. Don't have a confusion. Workman profit sharing fund is a complete liability directly in balance sheet. Okay, now workman profit sharing fund liability we have taken. Creditors are adjusted, reserve is adjusted, current accounts are carried forward, capital account is done. If we come on the asset side, बैंक अकाउंट वी हैव ट्रांसफर्ड. डेप्टर्स नो चेंज, सो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. डेप्टर्स को कोई चेंज नहीं है, इसके लिए सीधा ही 90,000. नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इट इज देयर. आफ्टर दिस नेक्स्ट इज स्टॉक, अगेन नो चेंज 60,000. ओके, देयर इज नो चेंज इन द स्टॉक. सॉरी, वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड माइनस करके. सो हो गया बिल्डिंग 4,50,000. ओके, फिर से एसेट है 4,50,000. नो चेंज हियर. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 1,05,000. नो चेंज. अगेन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 1,05,000. इन्वेस्टमेंट के भी हम रिकॉर्ड कर देंगे एसेट साइड ऑफ. बस इसके बाद कंप्लीशन टोटलिंग करेंगे. इफ यू सी revaluation account for a change, this time this side total is 24,000 and this side total 15 plus 9 again 24. No profit, no loss. कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे. If you look into here, if you look into partners capital account, partners current account total, this side total only is there in Rutvi and for Princey. Grand total here it is 2,07,500. Here 2,29,500. So this will be the balance carried forward. No debit side amount is there. Okay, here balance brought here the balances will be 2,07,500. And here 2,29,500. This balance will be carried. This is credit balances will be taken to the balance sheet here. Current account of two partners, Rutvi and Princey. Rutvi ka 2,07,500, 2,29,500. Princey ka grand total 4,37,000. Okay. बैंक अकाउंट भी क्लोज कर देंगे. सीधा सा है 1,05,000. टेक दिस बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड एंड दिस बैलेंस ऑफ 1,05,000 विल गो टू डेफिनेटली बैलेंस शीट. सब रिपीटेड है हियर. सो हियर बैंक बैलेंस विल बी
1 lakh 5 brought forward here in the balance sheet. Okay, so this way ये इन दोनों का करंट अकाउंट यहाँ, ये न्यूली का क्रिएटेड यहाँ पे आ गया. फाइनली आवर बैलेंस शीट विल टैली विथ 9,15,000. 9,15,000 is the total of the balance sheet. Okay, so we have understood this chapter. Now question, similar question is there in illustration, and that is illustration number 25. So again I am telling you, please take it this very seriously. I am giving you now, that means homework. Homework you have to go only illustration 25, which is similar to this particular question number 15. Okay, thank you.